ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर। तमाम तरह के सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी उसका जवाब दिया जा रहा है और कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठा रही है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं मंजीत जी आपके पास आते हुए, और बहुत देर से आप हाथ भी उठा रहे हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जो आप कहना चाह रहे हैं तो वो तो कहिएगा, लेकिन आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि जो वहां पर मौजूद थे ना सड़क पर, पीएम के काफिले को जो रोकने के लिए तैनात थे वहां पर प्रोटेस्टर्स, वो कांग्रेसी थे, वो किसान नहीं थे, और किसानों का कंधा देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही थी। तो आप ये क्लियर करिए कि आप कांग्रेसी हैं या फिर किसान हैं? सर मैं एक गल कहना चाहूंगा। सब तो पहला ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਰੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਸਪੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ, 3 ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਨੇ, 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ नहीं जरूरत ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ नहीं कराया, वो मजबूरन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मंजी जी मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आपको कोई नई मांग है क्या आपकी, जिसको लेकर आप एक मिनट सर, मैं पीएम की सुरक्षा को खतरे में आपने डाल दिया? अब कोई नई मांग है क्या आपकी? जो मांगे थी, जो भी जिनको लेकर आप 1 साल से बैठे हुए थे, 1 साल से ज्यादा समय तक, बल्कि वो मांगे तो लगभग मान ली गई हैं, उन पर काम भी हो रहा है, और 15 जनवरी को एक और बैठक होने वाली है आपकी। अभी तो वो तारीख भी नहीं आई है, उससे पहले पीएम के काफिले को रोककर आप खड़े हो गए, वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। ਸਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਿਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ KPS ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ, ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी सर, क्यों बदनाम करा जा रहा है? एक चीज जान बताऊं, क्यों पंजाब का माहौल खराब कराया जा रहा है? मजबूरन होगी, मजबूरी किसान नेता को नहीं। पंजाब का माहौल देखिए, पंजाब का माहौल बीजेपी कर रही है, आप कर रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है ना सर। भाई पीएम तो अपने दौरे पर आ रहे थे, उनको वहां पर रैली करनी थी, विरोध तो आपने शुरू किया ना, तो माहौल कौन खराब कर रहा है? आप खराब कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? आप बताइए सर। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। विरोध करने का आपको राइट है, लेकिन पीएम के काफिले को रोक देंगे आप, ये तो गलत है ना सर। नहीं सर, ਕਾਫਲਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਲਾ ਆਪ ਰੁਕਿਆ। ਕਾਫਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ 1.5-2 किलोमीटर अगे साइड पे। कैसे आप बात कर रहे हैं उस फ्लाईओवर पर 20 से 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक वो उस फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला खड़ा रहा, और आप कह रहे हैं काफिला हमने कहां रोका? सर ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। काफला ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ सिक्योरिटी ने रोका, क्योंकि उसकी वजह तो आप ही थे ना, उसकी वजह आप थे, उसकी वजह आप ही थे ना, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। काफिला आगे बढ़ नहीं सकता था, इसीलिए एसपी ने रोका या पुलिस ने रोका। सर मेरी गल सुनो एक मिनट, जे ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ।
उत्थे कहा तो ये भी जा रहा है मंजीत जी, 100-125 किलोमीटर मंजीत जी कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस के साथ आपकी बहुत अच्छी सेटिंग थी, पुलिस के साथ चाय पी रहे थे आप लोग, पुलिस आपके साथ चाय पी रही थी, ये भी कह रहे हैं सर। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਐਸਪੀਜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰ। 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, किसान साइड च खड़े ने, फिर तुसी एक गल कही जाते हो नहीं उस रूट की नहीं, वो रूट इतना गोपनीय होता है, पीएम किस रूट से जाएंगे इतना गोपनीय होता है सर, वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिल गई, इसी को लेकर तो सवाल खड़ा हो रहा है। उसके बारे में जानकारी आपको कैसे मिली, आपके हाथ कैसे लगी ये जानकारी? ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 4 ਵਾਲੇ ਦਲੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। अमित जी अत्रे साहब जवाब दीजिए। जी जी देखिए अमित जी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अपने किसान नेता है मनजीत सिंह घुम्मन साहब, ये वही भाषा बोल रहे हैं जो चरण सिंह चन्नी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहा था। मैंने बड़ा पहले स्पष्ट किया कि हमारा ऐतराज इसी बात का है कि पंजाब पुलिस को उस सड़क को सैनिटाइज करना था, रिजर्व करना था, जो उसने नहीं की। लगातार उस पे ट्रैफिक चल रहा है, उस पे आप जैसे लोग आके बैठ गए, यही तो हमारा ऐतराज है। और जब वो चल रही है सड़क तो हर कोई उस पे अपनी गाड़ी लेके जा रहा है। प्रधानमंत्री के काफिले से 20 किलोमीटर आगे लोकल पुलिस का यूनिट चलता है घुम्मन साहब, और वो यूनिट देखता है कि सारी सड़क क्लियर है या नहीं है। अगर आगे किसान बैठे थे तो क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता था कि तुरंत सूचना देता कि साहब आगे सड़क ब्लॉक है, आप आगे मत आइए, अपना रूट बदलिए या वापस जाइए? क्यों नहीं सूचना दी? और दूसरा, घुम्मन साहब आप कह रहे थे किससे खतरा है? खतरा किसानों से नहीं है घुम्मन साहब। आप जानते हो जिस क्षेत्र के अंदर ये हुआ वो कितना सेंसिटिव एरिया, ये आप बेहतर जानते हो। मैं पंजाब पुलिस के डीजीपी, पंजाब पुलिस के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के बयानों को कोट करके बोल रहा हूं। 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर है पाकिस्तान का। खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन पकड़े गए हैं, खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि टिफिन बम पकड़ा गया है, खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि हथियार आ रहे हैं पाकिस्तान से। अब देश का प्रधानमंत्री दुश्मन देश के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर ऐसे सड़क पे 20 मिनट खड़ा रहेगा तो आप समझ सकते हैं घुम्मन साहब क्या कुछ नहीं हो सकता। वहां की उनकी रेंज में थे देश के प्रधानमंत्री, क्या ड्रोन से अटैक नहीं हो सकता? खतरा वहां से था। आपने जो ये सड़क ब्लॉक करके प्रधानमंत्री को 20 मिनट रोके रखा, जिस षड्यंत्र में कांग्रेस आपके साथ शामिल थी, उसका नतीजा ये था कि देश के प्रधानमंत्री का जीवन संकट में आ गया। उस खतरे को समझिए कि खतरा कहां से था। लेकिन अत्रे साहब कहा कि कोई राजनीतिक, अत्रे साहब एक सवाल करूं मैं आपसे, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। अत्रे साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। देखिए आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और आप सही भी कह रहे हैं, ये बात सही है कि जो वो एरिया था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है, जब वो वहां पहुंचता है तब जाकर मीडिया को खबर लगती है कि बिना बताए हमारे प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए, तब खतरा नहीं था, आज खतरा है। तो थोड़ा सा ये सवाल भी ज़हन में आता है। आपने कांग्रेस बहुत अच्छा किया ये सवाल किया, क्योंकि कांग्रेस के कई मित्र ये सवाल सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जी। यही तो सबसे बड़ा पेच है, बिना बताए अचानक। सबसे बड़ी हमारा यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री का रूट डिस्क्लोज नहीं होता, प्रधानमंत्री किस सड़क से जा रहे हैं वो सड़क सिवाय पुलिस के किसी को पता नहीं होती। सुरजीत सिंह फूल चैनल पे बैठ के बता रहे हैं कि हमें पुलिस ने जानकारी दी। यही तो हमारा सवाल है। प्रधानमंत्री अब की जो मूवमेंट होती है बड़ी सीक्रेट मूवमेंट होती है, रोड सीक्रेट होती है। 3 ऑप्शन रखे जाते हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शन चुना जाता है, किसी भी रोड से निकल सकते हैं, लोकल डीजीपी की क्लियरेंस के बाद निकलते हैं। यही तो हमारे सवाल है अमित जी। अब दूसरी बात, जो अभी घुम्मन साहब कह रहे थे कि कोई किसी राजनीतिक दल से एफिलिएटेड नहीं है किसान नेता, घुम्मन साहब से सवाल है मेरा, मेरी जवाब जरूर ले लीजिएगा। हरिंदर लखोवाल के पिताश्री जो आपकी किसान यूनियन है एक, वो किस सरकार के अंदर चेयरमैन थे? एक बार बताना जरा मंजीत जी, जनता को पता लग जाएगा। बलबीर राजेवाल किस पार्टी की सरकार के अंदर चेयरमैन थे? एक बार बताइएगा जरा। आप ये बताइएगा कि कौन कौन से नेता कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिव मेंबर है,
ये भी बताइएगा, जनता को पता लगना चाहिए। आप कहते हैं किसी राजनीतिक दल से एफिलेटेड नहीं है, अरे ये तो खुलेआम है, शरेआम, इसमें तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है। उसके बावजूद अगर आप यहां बात देखिए, आप लोग कर क्या रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने आंदोलन किया, आंदोलन शांतमयी था। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के 400 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और एक भी आंदोलनकारी घायल नहीं होता, फिर भी आप कहते हैं आंदोलन शांतमयी था। हमने मान लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, आंदोलन शांतमयी है। जब दिल्ली के बॉर्डर पे एक युवक के हाथ पैर काट के लटका दिया जाता है, आप कहते हैं आंदोलन शांतमयी है, हमने फिर भी मान लिया कि हाँ जी आंदोलन शांतमयी है। ठीक है। जब एक युवती से बलात्कार हो जाता है, आप कहते हैं शांतमयी है, हमने मान लिया कि हाँ जी शांतमयी है। एक युवक को जिंदा जला दिया अत्रे साहब, महिमा जी आपकी बातों से सहमत नहीं है, वो बार बार गर्दन हिला रही है, उनकी भी सुन लेते हैं क्या कह रही है। मेरा केवल इतना कहना है कि जो राजनीतिक दलों से एफिलिएशन है वो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, आ रहा हूं मंजीत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आऊंगा। के बारे में बताइए किस पार्टी की सरकार में चेयरमैन थे, राज्यपाल जी के बारे में बताइए किस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जवाब लेते हैं इस बात का तो लगे। ठीक है, इस बात का जवाब लेते हैं। महिमा जी आ रहा हूं मैं आपके पास, मंजीत जी आ रहा हूं। महिमा जी, भाजपा प्रवक्ता अपना इतिहास भी जानते होंगे और अपनी पार्टी में शामिल जो कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से आए हुए बाकी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका इतिहास भी जानते होंगे। जब वो ये कहते हैं कि किसका संबंध किससे है, तो फिर तो किस पर विश्वास किया जाएगा, फिर तो आधी भाजपा दूसरी पार्टियों से ही आई हुई है, तो यानी भाजपा का अपना तो कोई चरित्र शायद है ही नहीं। अब मैं बहुत अहम बात याद दिलाना चाहती हूँ पूरे देश को आपकी चर्चा के माध्यम से। अमित जी, 2017 में आपको याद होगा कि गुजरात विधानसभा के दौरान चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के रोड शो पर रोक लगा दी थी। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लू बुक का उल्लंघन, जो ये पहली बार नहीं था और अब जो हुआ है वो आखिरी बार नहीं है, ब्लू बुक से एसपीजी की सुरक्षा चलती है, उसका उल्लंघन हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार करते रहे हैं। उस समय सिंगल इंजन वाले सी प्लेन से साबरमती में उतर गए और पूजा करने चले गए। ये उस समय पब्लिसिटी स्टंट था या जो भी था, ये वो जानेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। सिंगल इंजन वाले सी प्लेन से चलना प्रधानमंत्री को एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार उसकी अनुमति नहीं है, बावजूद उसके ऐसा किया गया था। उसके अलावा बहुत अहम सवाल ये है अमित जी कि बार बार जब ये बात आ रही है, जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं का सवाल खड़ा हुआ, जैसे ही मैंने ये कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ये सूचना किसने दी, भाजपा प्रवक्ता को शायद अपनी गलती का एकदम एहसास हुआ और उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आता बहन जी, फिर भी बात करें, सूचना की जरूरत ही नहीं थी, सड़क खुले चल रही थी, ये तो हमारा सवाल है, खुली सड़क कैसे? वो जाहिर है क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने की जानकारी किसने दी, वहां पे पुलिस थी या नहीं थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो वहां पहुंचने की जानकारी कहीं से मिली ना, वो कहां से मिली उनको? नहीं, लेकिन अगर भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे, महिमा जी, अगर भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे तो उनको रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी पुलिस की थी ना, पंजाब पुलिस की थी ना, कौन रोकता उनको? वो अगर वहां पहुंचे तो उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, बताइए किसकी थी? अमित जी, यही बात पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी ना, चाहे वो किसान पहुंचे, महिमा जी, चाहे वो किसान पहुंचे या फिर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, उनको रोकने की जिम्मेदारी तो पंजाब पुलिस की थी ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। और वो रैली स्थल के रास्ते में थे, वो रैली स्थल की रोड थी, उसी रास्ते से तो रैली स्थल जाना था। गाड़ी के चारों ओर एसपीजी का दायरा होता है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने, और ये आज तक के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में इतनी बार गाड़ियां बदली हैं। वाजपेयी जी ने भी बदली थी, मगर इतना तो किसी ने नहीं बदली। और अभी 12 करोड़ की मेदाक खरीदी है, वो कहाँ थी? वो 12 करोड़ की गाड़ी जो अभी सुरक्षा छोटी मानसिकता है, उस गाड़ी के अंदर क्यों नहीं लाया चलते हैं, इस बात की भी जब वो इतने सेंसिटिव एरिया में आ रहे थे। अभी भाजपा प्रवक्ता ने हमें बताया कि कितने संजीदा और कितने संवेदनशील इलाके में वो पहुंच रहे थे, कितना नाजुक था और कितना खतरा था उनकी जान को, हम सबके प्रधानमंत्री की जान को। ऐसे में जो हम सबके टैक्स से खरीदी गई 12 करोड़ की मेदाक है, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है, वो गाड़ी कहाँ पर थी? ऐसे में एसपीजी की गाड़ी प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने क्यों नहीं है? मीडिया पर्सन सामने से फोटो कैसे ले पा रहे हैं? ऐसे में 20 फुट के दायरे के अंदर भाजपा के प्रवक्ता कैसे पहुंचे? मंजीत जी, जो गाड़ी घेर के खड़े थे वो। ठीक है महिमा जी, आ रहा हूं मैं समय बचेगा तो मैं लौटूंगा मैडम। की मांग कर रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट गृह मंत्रालय की ओर से और केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से। महिमा जी, समय मेरे पास अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। महिमा जी, अत्रे साहब मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ। मंजीत जी, देखिए जो अत्रे साहब सवाल उठा रहे थे, भाई देखिए आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो राजनीतिक मंशा है, उस पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखिए ये सच है कि आप पहले कह रहे थे कि भैया हम किसी तरह की कोई
राजनीति नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं। चढ़ूनी साहब क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं ना पंजाब में। तो अगर अत्रे साहब ये सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पार्टी अगर ये सवाल उठा रही है, तो उसमें वो तो सच भी है, उसमें गलत क्या है, बुरा क्यों लग रहा है आपको? ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਰੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਲੈक्शन किसान भी लड़ सकते हैं। की गल किसान दी अपनी वोट नहीं, तो फिर आप अपने आप को किसान मत बोलिए ना, आप बोलिए कि हमारी पार्टी है, हम नेता हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, बात खत्म हो गई। सवाल उठाने का किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप किसान क्यों बोल रहे हैं अपने आप को? सर ਅਸੀਂ किसान है, क्योंकि मैं ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, 10 सेकंड आपके पास, आखिरी कमेंट ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ मिनिस्टर साहब ठीक है मंजीत जी, समय नहीं है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे मंजीत सिंह जी? ये कह रहे हैं कि किसानी का गोवर्धन पर्वत तो इन्होंने उठा रखा है, मतलब ये तो किसान है, लेकिन हम किसान नहीं है, हमें ये किसान नहीं मानते। भैया आप खुद कह रहे हो कि आप राजनीति कर रहे हो, आप चुनाव लड़ने का अख्तियार रखते हो, हम भी मानते हैं, बिल्कुल रखते हो। देश में लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, लेकिन जितने किसान मंजीत जी आप है ना, उतने किसान मैं भी हूं। आप हमें किसान भी मानिए, मैं भी उतना ही किसान हूं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम बोलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप आंदोलन से पहले राजनीति करते रहे। महिमा जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। अतः साहब समय नहीं है मेरे पास, मंजीत जी समय नहीं है मेरे पास। महिमा जी जल्दी से। दुरुपयोग मत कीजिए। सड़कों पर कीड़े बिठाने वाले हमारे प्रधानमंत्री किसानों की शहादत पर पल्ला। आपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसान के नाम का उपयोग किया है। अब मानिए कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, हम कब इनकार कर रहे हैं और हम बात को भी नहीं मानते। चलिए मेरे पास समय की कमी नहीं है, समय की कमी है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। ये लॉजिक समझ से बाहर है हमारे। नक्सलवाड़ी क्या है, कहा कि नहीं। ठीक है महिमा जी आपका, प्रवीण अत्रे साहब आपका, और मंजीत जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इसकी जांच की जा रही है पूरे मामले की, यह हाई प्रोफाइल मामला है और वो एक बहुत गंभीर विषय है, देश की सुरक्षा, पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मसला है। ऐसे में इस पर जो राजनीति हो रही है वो बंद होनी चाहिए, जांच होने तक बयानबाजी भी बंद होनी चाहिए, और जो जांच में सामने आएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर जो जिम्मेदारियां हैं, ये यूं कह लीजिए कि जो जिसको भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जानी चाहिए, जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ होनी भी चाहिए। लेकिन जिस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि वो राजनीति बंद होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर, इस गंभीर विषय पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।